we are memory interfacing and whatever we are discuss, basically all are same. So what are the function actually in a memory interfacing? Memory interfacing means we are interface like 8K into 8, 16K into 8, something like that. So what are the functions of memory? How memory interfacing will be done? Say I'm going to interface 16K into 8. What will be happen? 16K into 8 means we are calculating 16K is equal to 16 into 1K is nothing but a 2 to the power 2 to the 4 power 4. into 2 to 2 the to the power power 10 is equal to 10. 2 to the power 14. So 14 14. address buses directly connected. Rest of the address bus may be connected indirectly. Same concept over here. There is no distinguish between 8085 and 8051. So just see, there is a sample diagram. Say if I'm talking about the interface with 4K into 8, 4K into 8, you know, this is nothing but a RAM. RAM means how I can understood RAM. So there is a read bar and write bar, both is there. Read bar and write bar. So this is the RAM. So chip select bar is there. Chip select bar. Chip select bar is there. Chip select bar means you know I'm connecting with a NAND gate. Just see, 4K means 2 to the power how much, sir? Sir, 2 to the power 12. 12. That's why A0 to A11 directly connected with address decoder. Address decoder not mentioning over here, means it can connect address decoder with you know, directly. And rest of the you know, address bus like A12, A13, A14, A15, all are connected indirectly through a NAND gate, through CS bar. These two is a NOT gate and these two is a 1. So to select the chip, what are the value of A12, A13, A14 and 15? Anyone can say what are the value? So 111. No, sir. These two should be 00. A14 and A15 should be 00. Here it should be all are 1, 1, 1, 1. But value of A12, A13, A14, A15, these two are 1, 1 because it is connected directly. These two, Yes, as sir. it's connected with the NOT gate, so it should be 0, 0. So 0, 0, 1, 1, right? Yes, sir. So what will be the address range for the above diagram? What will be the address range for the above diagram? So address range, if I am talking about the address range for the above diagram, then you can find out, say A15, A14, A13, similar like, you know, if A14, A13, A12, A11, similar like in 8085. Is it clear? Is it clear to all of you? I'm just write A0 to A15. Is it clear to all of you? Can you see my copy? Yes, sir. Then, with respect to the diagram, A15 and A14 should be 0, 0. 0, 0. A13 and A12, 1. 1. 1, 1. So rest all are is connected directly. So it may be 0, it may be 1. 1. So first, we are given all are 0. सर स्टार्टिंग एड्रेस क्या बताएं? स्टार्टिंग एड्रेस देखो क्या होगा, कैसे हो रहा है, हमको नैन गेट देखना पड़ेगा. नैन गेट में इधर क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए बोलो. आउटपुट क्या चाहिए बोलो. यही चीज जानना है सर, मतलब कैसे वो बताएं. 1100. आउटपुट इधर चाहिए तुमको 0. आउटपुट तुमको इधर चाहिए 0, राइट.
इधर क्या चाहिए सर? इधर 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 1100. 1 सारा 1 चाहिए इधर। सारा 1 तो इधर क्या होगा? इन दोनों का तो 0 हो जाएगा सर, यस सर। राइट, क्योंकि नॉट गेट कनेक्टेड है। और इधर क्या होगा सर? 1 1। इधर 1 होगा। वो आउटपुट 0 के चिप सेलेक्ट होने के लिए चाहिए सर। हाँ, चिप सिलेक्टेड होना चाहिए, वही तो चाहिए ना, वही तो मेमोरी रेंज के हाँ, लिए इसीलिए वो महत्वपूर्ण 0। है। तो ये 0 यस होने सर। के हाँ। लिए इसको तुमको क्या चाहिए? देखो और ये 0 होने के लिए इधर इधर सारा का सारा 1 1 1 1 चाहिए। ये 1 1 होने के लिए इधर में क्या देना पड़ेगा? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 1 1 ही रहेगा, मगर ये नॉट गेट कनेक्टेड है इसलिए 0 0 चाहिए। 0 0। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो इसमें स्टार्टिंग एड्रेस मतलब इसके मतलब 0 फिगर के 0 हेल्प 1 से हम 1 लोग। 0 0 1 1 इधर तो रहेगा 0 0 1 1। यस सर। ये समझ, अभी कॉपी में देखो, ये समझ में आया कि नहीं? देखो 0 0 A15 से लेकर ये 12 तक, ये जो है ये 0 0 1 1 होगा। इट्स क्लियर? क्यों 0 0 1 1 हो रहा है? क्योंकि डायग्राम में ऐसा है इसीलिए, क्योंकि डायग्राम में ऐसा है इसीलिए। हम रिपीट वंस सर अगेन। सब कॉपी नहीं दिख रही है शायद। हाँ सर, कॉपी नहीं दिख रहा। हमको दिखा रहा है। नाउ ओके सर, फाइन। इज इट क्लियर? 0 0 1 1। नेक्स्ट देखो, सारा में मैंने 0 कर दिया, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। सो बेसिकली it will be 0 0 1 1 and rest all are should be 1, क्योंकि ये 0 1 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एड्रेस रेंज क्या होगा? 3 0 0 0 2 3 F एफ एफ F F। एफ। ओके सर, क्यों हो रहा है ये 0 1 1? यही मैंने डिस्क्राइब किया। अभी बोलोगे तुम लोग सर इधर में नॉट गेट क्यों लगाया? एक एग्जांपल दिखाया और कुछ नहीं। जो कैसे मेमोरी इंटरफेसिंग होता है उसमें एड्रेस रेंज किधर जाता है, एड्रेस रेंज क्या होगा इसके लिए। इज इट क्लियर टू ऑल? सर तो इसका क्वेश्चन कैसे, मतलब जैसे 8085 में दे रखा था पहले ही सेम इसे। क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ जो आप होगा। एग्जाम्पल से बता रहे थे। हाँ, एग्जाम्पल से बता रहे थे, जो जो लिखा था सिर्फ 8085 उधर हो जाएगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और कुछ नहीं। ये तो फास्ट एग्जाम्पल एक दिखाया जो कैसे होता है, अभी आएगा। ये हम लोग सोल्यूशन से क्वेश्चन की ओर गए ना सर। हाँ तो सोल्यूशन मतलब उसका क्या एड्रेस रेंज था, ये ना, हम लोग ये भी पूछा। क्वेश्चन आता है बहुत जगह में। एक ड्राइंग दे देता है, इसके एड्रेस रेंज क्या होगा। इस बार ये में भी दिया था, एनपीटीएल में भी आया था ऐसे क्वेश्चन। ड्राइंग दिया था, एड्रेस रेंज क्या होगा। इज इट क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ A0 यू? to A11 वाला सर, मतलब
थोड़ा सा डाउट है कि उसको क्यों? 000 ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 8085 में ही पढ़ाया था। जो ये 0 से शुरू करके 1 तक जा सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू चेंज हो सकता है, मगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मगर ये हाँ वो डायरेक्टली तो उधर कनेक्टेड है, कुछ गेट भी लगा वैल्यू है। हो सकता है। देखो इसका ये कुछ भी वैल्यू मतलब कोई 0 होगा, कोई 1 होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सब 0 होगा। सबसे लास्ट में क्या होगा? सब 1 सारा होगा। 1 होगा। यस यही सर। तो होना चाहिए। ये सबसे छोटा एड्रेस है, सबसे बड़ा एड्रेस, यही एड्रेस रेंज होगा। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। और चिप सेलेक्ट में हम लोग को सर सब 0 करना होता है, इसलिए यहाँ पे 111 चाहिए होता है। इधर 1 1 1 1 होना चाहिए, ताकि यहाँ पे 0 रिजल्ट आए। 0 रिजल्ट आए। नहीं तो Yes. चिप सिलेक्ट होगा नहीं। ये काम नहीं। ये मेमोरी चिप ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा? यस इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। नेक्स्ट टाइम गोइंग इनटू द नेक्स्ट। ये डिकोडर से, ये भी 4K into 8, 4K into 8 होने से क्या हुआ? बोलो। 2 to the सर power कितना हुआ? A0 to A11 हाँ, A0 से A11 12 डायरेक्टली एड्रेस कनेक्टेड, लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड। देखो इधर ना D0 to D7, D0 to D7 दिखा रहा है। इधर इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर नहीं दिखाया। दिखा भी सकता हाँ है, सर, नहीं भी डायरेक्ट। दिखा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। डेटा बस के साथ डेटा बस कनेक्शन दिखा दिया, सो दैट ये बाइडायरेक्शनल, डेटा बस बाइडायरेक्शनल, इसलिए ये भी बाइडायरेक्शनल ही होगा। इट्स क्लियर? यस सर। तो तो सर ये जो डिकोडर है सर, ये तो इसमें Yes. सर 4 बज जाता हम लोग का एड्रेस बस, तो 4 into 16 बनेगा ना सर डिकोडर हम लोग का। हाँ, ये 3 x 8 से बनाया। क्यों? देखो ये 15 के परमानेंटली ग्राउंड कर दिया, ये 15 को परमानेंटली ग्राउंड कर दिया। तो ये 15 परमानेंटली ग्राउंड मतलब ये 15 0। Am I right? यस सर। यस सर। अभी इसमें 0, इसमें Y4 के साथ कनेक्ट, मतलब A4 A3 A12 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाँ सर जी। बोलो। 1 सर। हाँ ना, क्या होना चाहिए? Y4 होने से इसका वैल्यू क्या होगा? Y4 होने से सर इसका वैल्यू 0 0 1 होगा सर। 1 0 0 जो होगा। सर 0 0 12 सर हाँ। Y4 के साथ कनेक्टेड है सर। हाँ ये सर 15 Y4 भूल जाओ। समझ में नहीं आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया सर। ये तीनों 0 0 0 होने से Y0 के साथ कनेक्ट होता था। इन तीनों 0 0 1 होने से Y1 के साथ कनेक्ट होता था। इन तीनों 0 1 0 होने से Y2 के साथ कनेक्ट होता था। 0 1 1 होने से Y3 के साथ कनेक्ट, Y3 के साथ सिमिलरली 1 0 0 होने से Y4 के साथ कनेक्ट होता था। तो Y4 यस के साथ सर। हाँ कनेक्ट है, मतलब 1 0 0 होना चाहिए। सर थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा कॉपी में समझा दीजिए हैं बोला? सर, थोड़ा सा वो कॉपी में समझा, डिकोडर का जो था फॉर्मूला उसके बेसिस पर होता है। कॉपी में सर थोड़ा समझा दीजिए लिख करके सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। वेरी गुड। एक टेबल है, टेबल क्या है? टेबल क्या है? CBA 0 0 0 होगा
तो y0 सिलेक्टेड होगा, 001 होगा तो y1 सिलेक्टेड होगा, 010 होगा तो y2 सिलेक्शन होगा, 011 होगा तो y3 सिलेक्शन होगा, 100 होगा तो y4 सिलेक्शन होगा। इधर किसके साथ सिलेक्टेड है? देखो C कनेक्टेड है A14 के साथ, B कनेक्टेड है A13 के साथ, A कनेक्टेड है A12 के साथ। ये किसके साथ कनेक्टेड है? यस सर 001 के साथ। y4 के साथ कनेक्टेड है, तो A14 कितना होगा 1, A13 Yes, कितना sir. होगा 0, A12 हाँ। कितना होगा 0। 0। तो मैंने तो यही लिखा है 100। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। 100 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट A02 A11 क्या होगा सर? सर 0। ये तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो सारा को पहले 0 बैठ दो। सर पहले बोलो तो ये रोम है क्या रैम है? रोम है रोम सर, इसमें तो मेंशन नहीं। ये सर रोम है सर। सर ये सब तुमको देख के करना पड़ेगा, मैं 85 में इतना कुछ रोम है करवाया। सर, रोम है सर, क्योंकि इसमें सर ओई और वीसीसी दिया है सर, इसलिए ये रोम होगा सर। हाँ वही है, VPP दिया है, VPP नॉट रीड बार राइट बार दिया है, हाँ ये रोम है सर। रोम है। तो ये क्या हो गया 400024 F F F F। इज इट क्लियर? यस सर। सर इसको 4x16 डिकोडर से भी कनेक्ट कर सकते थे, मगर ऊपर में देखो, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द 3x8 डिकोडर से करना है। तो 3x8 हाँ, डिकोडर से करना है तो एक तो हमारा पास जाएगा, वो G2A बार के साथ कनेक्टेड किया है। जब तक G2A बार 0 नहीं होगा तब तक ये चिप ही एनेबल नहीं होगा, और ये चिप एनेबल नहीं होगा तो ये चिप एनेबल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। यस सर। इज इट क्लियर? यस तुम्हारा सर। प्रिंसिपल एनेबल होगा, उसके अंडर हम है, तो उसके बाद हम एनेबल होंगे, उसके बाद तुम लोग एनेबल होगे, राइट? अभी तुम लोग एनेबल होने के लिए हमारा जरूरत है, हमको एनेबल करने के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल का जरूरत है। इट्स क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये रोम इंटरफेसिंग हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग सर ये जाएंगे। हाँ बोलो। G2A बार और G2B बार मतलब ये वो क्यों ग्राउंड लिखे? बार मतलब एक, मतलब ये भी एक ग्राउंड, G2A मतलब ग्रैंड 2A ग्रैंड 2B बोलते हैं हम लोग, ये भी ग्राउंड ही कनेक्ट होता है, इसको हम लोग ग्राउंड ही बोलते हैं, GND। ग्राउंड के अच्छा। साथ ग्राउंड कनेक्ट हो जाता है, ग्राउंड के साथ ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। देखो बार है मतलब एक ग्राउंड होगा तभी काम करेगा, ये चीज दोनों 0 होगा तभी काम करेगा। ओके सर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, इसमें तुम लोग बहुत ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग इतना दिन से हम तुमको बोले थे डीमल्टीप्लेक्स बोले थे कि नहीं? डीमल्टीप्लेक्स के बारे में सुने हो? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स कोई नहीं सुने? जग ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स के बारे में कोई सुने हो? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स नहीं सुने हो? वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर डिजिटल में था। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स का भी नहीं सुने हो? नहीं सर। हमारा क्लास में जो होते थे ना, तुम लोग 2 घंटा पूरा कॉलेज में वो चेयर करके रख देते थे। मैं कितना बार बोला एड्रेस बस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नहीं बोले? बोले हैं हाँ सर। सर। यस सर, हाँ आपस सर, में बताएं। TDM में रहता कंट्रोलर है। में बोले, सारा में बोले, हाँ सर बोले थे। TDM कोई सुने ही नहीं हो। पिन डायग्राम में बताए थे सर। ये सुने हैं अभी जो 8051 में पढ़ा रहे थे।
थोड़ा दिमाग से निकल गया था सर। ऐसा ही होता है सर। हेलो। या इट्स क्लियर टू ऑल। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स अगर बोल पाओगे कोई? हाँ सिमिलर मतलब एक सेम सर पिन दो फंक्शन एक्ट कर सकता है सर। सर मुझे पहले बोलो एड्रेस टाइम बस का और मतलब डाटा क्या हुआ? टाइम बोला तो टाइम का मतलब तो कुछ होना चाहिए ना, इसका मीनिंग बताओ ना। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। टाइम सर टाइम कम लगता है मतलब अरे ना रे बाबा, डाटा सेम बस चीज और अलग एड्रेस टाइम में अलग परफॉर्म करेगा, अलग रोल। ना ना ना। सोनम बोलो, तुमसे कुछ सुनना चाहता है। सर सोच रहे हैं क्या होगा। ओ बाबा रे, तुम अभी सोच भी रहे हो। क्या कुछ सर को बोल दो ना, सर तो समझ ही जाएगा। भोला वाला सर है, जो बोलेगा हाँ हाँ सोनम ठीक बोला, ठीक ठीक ठीक। सर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स आई थिंक टाइम के होता है, मतलब एक कभी वो एक्ट करेगा एज अ डाटाबेस, कभी एड्रेस बस मे बी। इज वेरी इजी, वेरी इजी। तुम लोग बहुत टॉप करके सोच रहे हो। सर एड्रेस और डेट ऑफ टाइम का बर्थ मतलब साथ क्या में है? टाइम का मतलब क्या है? समय। हिंदी में बोलो, समय। ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड करना, अलग डिवाइड करना, अलग 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 करना। मतलब टाइम का रेस्पेक्ट में दो एक चीज को दोनों पार्ट में डिवाइड करना, यही है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इज इट क्लियर और नॉट? टाइम का रेस्पेक्ट में ये दोनों काम करेगा, टाइम का रेस्पेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना? यस सर। सोनम शाम में क्या करते हो? सर शाम में स्टडी। शाम में भी स्टडी? वाह वाह, यू आर ए ग्रेट। हम तो इतना कहीं पढ़ाई नहीं किया, शाम में भी स्टडी। मतलब 6 बजे तक थोड़ा बहुत गेम वेम कुछ कुछ खेल लेते हैं, उसके बाद फिर स्टडी करते हैं। गेम में कुछ कुछ खेल लेते हो? तो गेम में जब खेलते हो तो उसका तुम्हारा नाम क्या होता है? सोनम। ना ना, उस टाइम में तुम्हारा नाम होता है प्लेयर। ओ नाउ यू आर ए स्टूडेंट, एम आई राइट? यस सर। तो अभी तुम्हारा नाम स्टूडेंट है, उस टाइम में तुम्हारा नाम प्लेयर है, मतलब यू आर ऑल्सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम का रेस्पेक्ट में तुम्हारा काम कुछ दूसरा दूसरा हो जाता है। कभी तुम एक टाइम में तुम काम करते हो एज ए स्टूडेंट, एक टाइम में काम करते हो एज ए एज ए प्लेयर। घर में खाना फाना बनाते हो यस सर। तो एज ए कुक। तो टाइम का रेस्पेक्ट में तुम्हारा भी 3-4 फंक्शंस है। यस इज इट सर। क्लियर और नॉट? सिमिलरली यही इधर पे भी एक ही हालत है। AD0 to AD7 ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। ये कोई एक टाइम में ये काम करता है एज ए एड्रेस बस A0 to A7, कोई टाइम में ये काम करता है D0 to D7 एज ए डेटा बस। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ या ना में बोलो। हाँ सर। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पता चला क्या चीज है? यस सर, जो आप एग्जांपल दिए थे एक बार, 2 गेट वाला 1 गेट वाला सर। ठीक, 2 गेट वाला 1 गेट वाला, वो जो मैंने क्लासरूम में बोले थे, हाँ सर। वही है। टाइम का रेस्पेक्ट में पहला 20 मिनट तक आएगा, नेक्स्ट 20 मिनट तक जाएगा। स्टूडेंट आना जाना ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो AD0 to AD7 है, इट विल बी एक्ट एज A0 to A7, इट विल बी एक्ट एज D0 to D7। ये काम करेगा एड्रेस बस एंड डेटा बस के हिसाब से। अभी ये चीज कभी देखे हो? ये चीज कोई जगह में?
सर फ्लिप फ्लॉप में शायद था हाँ वो, एग्जैक्टली, फ्लिप फ्लॉप में। क्या फ्लिप फ्लॉप बोलता है इसको सर? डी फ्लिप फ्लॉप। वेरी गुड, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के क्या फंक्शंस है? सर इसमें एक ही इनपुट रहता है, 0 और 1। आउटपुट क्या होता है? सर कुछ भी हो सकता है, क्यू और क्यू हाँ? बार। क्यू है, क्यू आर। क्यू को ही आउटपुट बोलता है। क्यू और क्यू बार जो भी है, तुम बोलो क्या आउटपुट होता है? क्यू बोलो, क्यू। क्यू मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा क्यू बार। बोलो। सर याद नहीं है, आउटपुट वाह, बोल रहे वेरी गुड। याद नहीं है वो बोलो ना, सर याद नहीं है। नहीं हो सकता भाई, हमारा भी बहुत कुछ याद नहीं है। मैंने पिछला दिन तो तुम लोगों को बोला, हमारा भी बहुत कुछ याद नहीं रहता है। याद रखना उतना आसान थोड़ी है। डी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज ए मेमोरी, रिमेंबर, बिकॉज डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जो है आउटपुट सेम है, 0 में 0, 1 में 1। तो स्टोर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मतलब ये डी फ्लिप फ्लॉप, कॉपी में देखो, ये डी फ्लिप फ्लॉप होगा, ये डी फ्लिप फ्लॉप है। तो इसका इनपुट जो होगा 0 होने से इधर 0 होगा, 1 होने से इधर 1 होगा। यह है क्यू। क्यू बार इसका उल्टा होता है, मतलब 1/0 होता है। तो हम लोग क्यू को लेकर ही बोलते हैं, 0 देने से 0 आएगा, 1 देने से 1 आएगा। राइट? इज इट क्लियर? हाँ यस ना, कुछ बोलो जो सर समझ में नहीं आया सर, दोबारा बोलिए, 6 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, बोलिए सर। कुछ नहीं बोलने से कैसे होगा? टफ लग रहा है? बोलिए सर, टफ लग रहा है, हम उसको और इजी करके बोलते हैं। किसी का कोई क्वेरीज है तो बताओ, नहीं तो चुपचाप बैठे रहोगे तो टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा। डी फ्लिप फ्लॉप समझ में आया कि नहीं? सर वंस मोर सर। हाँ बोलो ना। डी फ्लिप फ्लॉप मान के चलो एक बॉक्स है, ठीक है? इसमें जो दोगे वही आउटपुट आएगा क्यू में। 0 देने से 0 आएगा, 1 देने से 1 आएगा। तो दिस दैट्स व्हाई डी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड मेमोरी। डी फ्लिप फ्लॉप ऐसे मेमोरी की तरह ट्रीट करता है। मेमोरी बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज होता है। क्यों? ये इधर एक गेट सिग्नल था, गेट जी। ये गेट सिग्नल जब ऑन होगा तभी डेटा इधर से इधर जाएगा, नहीं तो इसके अंदर ही रह जाएगा। जब गेट सिग्नल ऑन होगा तो ये 0 देने से इधर 0 मिलेगा, ये 1 देने से इधर 1 मिलेगा। इज इट क्लियर? और नहीं तो गेट सिग्नल ऑफ रहेगा तो ये मान के चलो ये बीच से कटा हुआ रहेगा, कोई कनेक्शन इधर से इधर नहीं जाएगा। और नहीं तो इधर से इधर कनेक्टेड है, मान के चलो। इज इट क्लियर और नॉट? सर क्यू बार का केस कब आएगा? क्यू बार का केस, हर एक गेट में 2 होता है, एक गेट और उसका रिवर्स, क्यू एंड क्यू बार। जब तुमको रिवर्स चाहिए तो रिवर्स लगाओ, क्यू बार लगाओ। जब तुमको और ये क्यू चाहिए तो क्यू लगाओ, जो तुमको चाहिए वो लगाओ। क्यू बार रिवर्स होता है। और क्यू बार को क्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉट गेट नॉट लगाओ, लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है? तो ताले क्यू बार एंड क्यू के बीच में कोई ये जो है, ये बेसिकली क्यू ही है, ये बेसिकली क्यू ही है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट यस क्लियर? सर। अविनाश, नॉट लगाने के बाद क्यू हो गया ना सर? हाँ, अविनाश इज क्लियर टू यू? यस सर। सर क्या इतना साइलेंट क्यों है? अविनाश, इतना साइलेंट Yes, होने sir. से चलेगा? नहीं सर। कुछ बोलो, समझ में नहीं आ रहा है तो वही बोलो जो समझ में नहीं आ रहा है। सर हम बोलेंगे, यस। आई एम नॉट ए बुक। ये पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, बस फिर पढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं है। हम 1000 टाइप का बोल सकते हैं, तो तुम पहले बोलो तो क्या तुमको चाहिए, हम देंगे। अभी आ गया समझ में ये वाला जो आप बताए, फ्लिप फ्लॉप। तो गेट पिन ऑन होने से इधर से इधर ऑन होगा, गेट पिन ना ऑन होने से ऑन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर।
एक पिक्चर दिखा रहा है। इधर में कोई फ्लैट में रहता है, मतलब फ्लैट में भी छोड़ दो, कोई सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में ऐसा रहता है कोई? यस सर। तुम्हारा तो बहुत महंगा है घर, है ना अंकिता? तो तुमसे नहीं सर, कॉन्सेप्ट लेंगे सेकंड हम। फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में रहते हैं? वाह वाह, ये फ्लैट है क्या? नहीं सर। घर ही इतना बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओ माय गॉड, हाँ सर। ओ माय गॉड। तुम्हारे घर में एक दिन जाना पड़ेगा अंकिता। ठीक अरे है हाँ तो सर, बोलो ना, आइए। जाएंगे नहीं? सर बोल तो रहे हैं आइए। तो आप बोल रहे हो जैसे ना आए। नहीं सर, आप ही तो बोले हैं। सर हम लोग के घर पे भी आइएगा। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तुम्हारा तो तुम्हारा घर में भी जाएंगे, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, सोनम का घर तो कॉलेज के सामने ही है। वाह ब्यूटीफुल। तो तुम्हारा घर में हम डेट कर रहे हैं, वो लगभग 5, 6, 7 तारीख में हम जाएंगे। ठीक है सोनम? यस सर, बिल्कुल। 5, 6, 7 फरवरी में। तुम तो उस टाइम में नहीं रहोगे ना? क्यों नहीं, हम रहेंगे सर। वो जाने से सब बोलता है सर आज ही आप आ गया, आज तो हम लोग का घर में निरामिष चलता है, आज तो हम घर में नहीं रहेंगे। नो सर, हम रहेंगे, आप कभी भी आ सकते हैं। ये है पाइपलाइन, ठीक है? ये है पाइपलाइन। ये वाटर टैंक है जो अंकिता का बिल्डिंग का ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? इधर में ग्राउंड फ्लोर है, इधर में ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। अंकिता तुम्हारा सेकंड फ्लोर ही लास्ट है क्या, उसके ऊपर भी है? नहीं सर, सेकंड फ्लोर ही लास्ट है। अच्छा सेकंड फ्लोर ही लास्ट है, तो और भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मान के चलो थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है? ये पाइप लाइनिंग है, ये पाइपलाइन क्या आता है इधर से? पानी। पानी आता है, वेरी गुड। मान के चलो इधर से एक लाइन ये ब्रांच करके सेकंड फ्लोर में गया अंकिता का घर में, तब जाकर अंकिता को पानी मिलता है। इधर से भी एक ब्रांच करके जाएगा, तब थर्ड फ्लोर में पानी मिलेगा। इधर में भी एक ब्रांच रहेगा, तब फोर्थ फ्लोर में जाएगा। एंड इसमें भी एक रहेगा, इसमें भी एक रहेगा। एम आई राइट? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अविनाश से लेकर बाबली से लेकर सारा को समझ में आया? जय को यस समझ सर। में आया? यस सर। सर अभी मान के चलो ये पाइप का ये जो जगह है हम तोड़ दिया, अंकिता हमको बुलाया नहीं, मैं गुस्से में इसको जगह ये जगह हम तोड़ दिया। ये पाइप का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमने तोड़ दिया। अभी बोलो पानी किधर जाएगा? बह जाएगा सर। बह जाएगा पूरा। बह जाएगा, ठीक है। सेकंड फ्लोर में अंकिता को पानी मिलेगा? नो सर। नो सर। फर्स्ट फ्लोर में मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा, थर्ड फ्लोर में मिलेगा, फोर्थ फ्लोर में मिलेगा, कोई फ्लोर में मिलेगा? नो सर। नहीं मान मिलेगा। के अभी मान के चलो ये फ्लोर नहीं था, सिर्फ इस घर में सेकंड फ्लोर ही है रहने का, बाकी सारा है ये है शोरूम। क्या शोरूम है? ये टाटा का शोरूम है, ये मर्सिडीज बेंच का शोरूम है। इज इट क्लियर? आज सेकंड फ्लोर में वो लोग रहता है। अभी मान के चलो हमारा पानी हम इधर तोड़ देंगे तो सेकंड फ्लोर में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। इधर तो पानी कोई जा नहीं रहा है, सारा बंद है। अभी मान के चलो इसको हम फिर से रिपेयर कर देंगे तो सेकंड फ्लोर में पानी जाएगा? यस सर। कर जाएगा। तो ये खोलने से पानी इधर नहीं जाएगा, ये बंद करने से पानी इधर जाएगा, ये खोलने से पानी इधर नहीं जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छा से देखो।
ये कॉन्सेप्ट रखना तुम लोगों के पास। जब तक एएलई सिग्नल हाई रहेगा, जब तक एएलई सिग्नल हाई रहेगा तब तक जी भी कितना रहेगा, जी के साथ कनेक्टेड है। जी मतलब एक गेट पिन का जी, ये जो मैंने अभी तुमको दिखाया गेट पिन का जी, ये हाई रहेगा, एक गेट पिन का जी, राइट। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, तो ये सारा डेटा इधर से इधर पास हो जाएगा, सारा डेटा इधर से इधर पास हो जाएगा, सारा डेटा। ये एक डी फ्लिप फ्लॉप दिखाया, ऐसा 8 डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है हर एक पिन के साथ। 8 डी फ्लिप फ्लॉप AD0 से लेकर AD7 तक लगा हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सर 8 फ्लिप फ्लॉप कहाँ है? 8 फ्लिप फ्लॉप एक दिखाया, इतना दिखाने से ना ये बहुत गंदा हो जाता था, इसीलिए मैंने नहीं ओ दिखाया। अच्छा, हाँ AD0 to AD7 सब में फ्लिप हाँ, फ्लॉप लगा है। सब में फ्लिप हाँ। फ्लॉप लगा हुआ है, मैं एक दिखाया, बाकी सारा नहीं दिखाया। इज इट क्लियर और नॉट? तो हर एक एएलई सिग्नल के साथ हर एक का जी कनेक्टेड है, हर एक का जी कनेक्टेड है। जब तक एएलई सिग्नल हाई रहेगा तो सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा। हाँ या ना में बोलो। यस हाँ यस सर। सर। एएलई सर सिग्नल हाई रहेगा ये- तो जी के साथ कनेक्टेड है, सारा जी कनेक्टेड है एएलई के साथ। तो एएलई हाई मतलब जी भी हाई, तो सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑन, मतलब इधर से डेटा सब इधर चला जाएगा, इधर से डेटा सब इधर चला जाएगा, इधर से डेटा सब इधर चला जाएगा। देखो इधर क्यू बार कनेक्टेड है, क्यू बार मतलब रिवर्स होना चाहिए, बट उसके बाद एक नॉट गेट भी कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? तो सर क्यों ही हो जाएगा ना सर, वो तो नोट क्यू ही हो जाएगा, मतलब हम जो देंगे वही इधर वही हो जाएगा, जाएगा। वो जो Yes, sir. जिधर देंगे वही उधर जाएगा। इज इट हाँ। क्लियर? यस सर। तो इधर से इधर जा रहा था जब तक एएलई सिग्नल हाई था। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। मतलब एएलई सिग्नल हाई होने से AD0 to AD7 एक्ट एज A0 to A7। सही बोला कि नहीं? एएलई सिग्नल हाई होने से AD0 to AD7 एक्ट एज A0 to A7। हाँ या ना? यस सर। यस हाँ? सर। नहीं सर, समझ में नहीं आया यहाँ पे लास्ट में जो बोले। फिर से बोल रहा हाँ हूँ, सर, हाँ हो गया समझ में आ गया सर। एक एएलई है जैसा सिग्नल एक हाई होने से सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, मतलब इधर से सारा डेटा इधर आ जाएगा। यस तो सर। हाँ एएलई सिग्नल हाई मतलब AD0 to AD7 एक्ट एज A0 to A7। हाँ हाँ अभी सेकंड फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, अंकिता हाँ का घर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी एएलई सिग्नल मान के चलो लो, तो ये जी क्या होगा? लो होगा। यस सर। तो Yes, सारा sir. डी फ्लिप फ्लॉप, सारा डी फ्लिप फ्लॉप लो हो जाएगा सर। नो, सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। तो इधर में सारा क्रॉस, इधर में कोई डेटा इधर से इधर नहीं जाएगा। नो हाँ। डेटा विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम P0 सॉरी AD0 to AD7 इनटू द A0 to A7। कोई डेटा Yes. इधर से नहीं जाएगा, सारा डी फ्लिप फ्लॉप विल बी ऑफ, रिमेन ऑफ। इट्स Yes, sir. क्लियर? हाँ सर। अभी एएलई सिग्नल जब लो हो गया, सारा डी फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो गया, तो क्या होगा? सब डेटा इधर से इधर पास कर जाएगा, सारा बाईपास डेटा कर इधर से दिया इधर सर। पास कर जाएगा, सारा डेटा इधर से इधर पास कर जाएगा। तो क्या होगा? D0 to D0 to D0 to D7 हो D7 जाएगा। ही सबसे काम करेगा। जब तक एएलई सिग्नल हाई रहेगा तब तक A0 to A7 का काम करेगा, जब तक एएलई सिग्नल लो होगा तब तक D0 to D7 काम करेगा। ये है वो पाइप, जब ये बंद रहेगा तब सेकंड फ्लोर में पानी जाएगा, जब ये खुला रहेगा तो सारा डेटा इधर से इधर चला जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। सर यहाँ पर इनकोडर की जगह हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। कौन सा मतलब में? ये जो पूरा AD7 to AD0 to AD7 के बीच में जो ये नो सर नो नो ब्लैक नो वाला नो 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 नो, ये जो सारा है ये है डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्किट। ये हर एक माइक्रोप्रोसेसर अच्छा में भी भाई, काम में ये आएगा। क्या है सर? ये अच्छा ये हाँ, ये ये अभी तक हम सर। अभी इंटरफेसिंग समझाया नहीं, मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाया क्योंकि ये 8.5 में भी तुम लोगों का कॉन्सेप्ट हमको लगता है क्लियर नहीं था, इसीलिए। जो AD0 to AD7 तो काम करता है, मगर उसके बाद डीमल्टीप्लेक्स कैसे हो जाता है, कैसे A0 to A7 कैसे D0 to D7 में डिवाइड होता है। आता तो है AD0 to AD7 के रूप में, आता तो है AD0 to AD7 के रूप में, मगर ये कैसे डिवाइड होता है A0 to A7 एंड D0 to D7 में, तो वो हम तुमको समझाया अभी। ओके सर। इज इट क्लियर और नॉट?
इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। अभी मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में हम बोले ही नहीं, मेमोरी इंटरफेसिंग के बाद में आ रहे हैं। पहले ये डायग्राम हम तुमको समझाया, ये डायग्राम ये 8586 माइक्रो कंट्रोलर सारा में एक ही है। जे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है। मल्टीप्लेक्सिंग तो इसके अंदर ही हो जाता है, मगर डीमल्टीप्लेक्स होता है यूजिंग 74 LS 373 लैच से। उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप रहता है, जिसका गेट, हर एक का गेट पिन कनेक्टेड रहता है, एक जी पिन बोल का पिन रहता है, वो एलई के साथ कनेक्टेड रहता है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर? कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. अभी हम आएंगे ये मेमोरी इंटरफेसिंग में। इधर क्या बोला है, 8 के इंटू 8, क्या बोला है? रोम, रोम नहीं, उसके पहले प्रोग्राम रोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 के इंटू 8 प्रोग्राम रोम। पहले बोलो 8 के मतलब क्या, टू द पावर कितना होता है? Sir, 13. 13। देखो A0 से 13 लेकर address line. A7, A8 से लेकर A12 तक डायरेक्टली कनेक्टेड। A13 मतलब A0 से A12 तक कनेक्ट होगा, वही हुआ। Yes, देखो sir. A0 टू A7 इधर, A8 टू A12 इधर। तुम अभी बोल सकते हो सर इधर में ऐसा क्यों चिप नहीं लगाया, बोलो तो क्यों नहीं लगाया? बोलो। ये सर चिप जो मल्टीप्लेक्स करने का जरूरत ही सर, नहीं था। हाँ, पीडीएम में उतना क्योंकि ही रहता है ना। कि ये तो मल्टीप्लेक्स ही नहीं रहता है, तो इसको डीमल्टीप्लेक्स करने का जरूरत क्या है? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ये इसका डीमल्टीप्लेक्स करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स रहता ही नहीं है, तो A8 से A12 का फॉर्म में ही रहता है, तो 8 के 12 लग गया। यह है प्रोग्राम मेमोरी। इतना देर तक जितना कराया सब था डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ PSEN बार, फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टोर एनेबल। फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टोर एनेबल कनेक्टेड विथ PSEN बार। इधर रीड बार राइट बार नहीं कनेक्ट होता है। सी बार एंड OE बार दोनों के साथ, सी बार एंड OE बार दोनों के साथ ये कनेक्टेड रहता है। सी बार एंड OE बार दोनों के साथ ये कनेक्टेड रहता है, यू नो, PSEN बार, फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टोर एनेबल। फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टोर एनेबल, PSEN बार इज कनेक्टेड। यही तो मैंने बोला था, जो PSEN इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी के लिए PSEN कनेक्टेड होता है। PSEN लो होने से प्रोग्राम मेमोरी एक्टिव होता है, PSEN हाई होने से प्रोग्राम मेमोरी एक्टिव नहीं होता है। इज इट क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लो होने पर एक्टिव होगा। लो होने से एक्टिव होगा, ये लो होने से ये मेमोरी काम करेगा, ये लो नहीं होने से ये मेमोरी चिप काम नहीं करेगा, तो प्रोग्राम मेमोरी काम बार लगा है सर, इसीलिए ना सर उसमें है। उसमें बार लगा PSEN में, इसीलिए ना सर। हाँ, बार तो है ही, बार तो है ही। बार होने से तो लो में एक्टिव होगा, मगर वो भी है जो PSEN मतलब फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। यस सर। प्रोग्राम मेमोरी के एनेबल करने के लिए ये PSEN को लो होना पड़ेगा। इट्स क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, तो ये है तुम्हारा प्रोग्राम मेमोरी। अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी एक साथ। ये ऑन चिप ऑफ चिप क्या रहता है, ये देखो 8051 में 00002 0FFF ये हमारा ऑन चिप रहता है। एंड यू नो 8052 में ये 8 के मेमोरी है, तो 0000 से 1FFF तक इसका ऑन चिप रहता है। ऑन चिप थोड़ा बड़ा रहता है, रेस्ट FFF तक ऑफ चिप रहता है, राइट। जैसे 8031 में भी कुछ 80 में वो पूरा ही ऑफ चिप है, जो तुमको लगाना है बाहर से ही लगाना है। 8051 में तुम्हारा ऑन चिप होता है 4K, ऑफ चिप होता है रेस्ट। 8052 में 8K होता है ऑन चिप एंड ऑफ चिप होता है रेस्ट। इज इट क्लियर? इज क्लियर टू यू? यस सर। सर वंस मोर सर इन ब्रीफ सर। हाँ, रोम हम पहला दिन बोला था, रोम हमारा इंटरनल रोम रहता है 4K।
total memory capacity of 8051 is 64K program memory, 64K data memory. I am repeat once again. 8051 में 64 KB is available for program memory and 64 KB is available for data memory. It's clear to all? यस Okay, सर, sir. यहाँ क्लियर है सर। आगे सर। अभी इसके अंदर 4K ऑन चिप रहता है, 4K ऑन चिप रहता है। देखो मैंने जब आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाया था उस टाइम में मैंने दिखाया था 4K ऑन चिप में रहता है, रेस्ट ऑल आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। तुमको चाहिए तो तुम बाहर से लगा सकते हो, तुमको चाहिए तो तुम बाहर से लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको लगाना है तो बाहर से लगाना पड़ेगा, मतलब तुमको ऑन चिप में रहेगा, तुम्हारा ऑन चिप में रहेगा 4K। Can you see my Sir, copy? on chip means internally. Internally, very good. On chip means internally. Internal ROM देखो, इसके अंदर मैंने हमारा कॉपी देखो, देखो ROM के अंदर क्या बोले थे 4K। तो ये 4K प्रोग्राम मेमोरी, 8051 में 4K प्रोग्राम मेमोरी रहता है। 4K प्रोग्राम मेमोरी के मेमोरी लोकेशन करोगे तो 0000 टू 0FFF होगा। 4K मतलब 2 टू द पावर कितना, 12। नहीं आ रहा है समझ में? हाँ सर, 12 सर, 12। हाँ 4K मतलब 2 टू द पावर 12। 12 Yes, sir. मतलब 0000 0000 0000 0000, इसके अंदर 12 1 हो जाएगा। 1111 1111 1111। तो ये है 000 F F F, ये 0000 ही रह जाएगा क्योंकि ये तो 12 तक ही हमको लेंगे ना, ये 2 टू द पावर 12 आया है। Yes, sir. तो ये 0000 टू 0FFF ये हो जाएगा ऑन चिप। इसीलिए देखो 00 स्लाइड में मैंने दिखाया 0000 टू 0FFF ऑन चिप है। ओके, Yes, sir. सिमिलरली फॉर 8051 8052 के लिए 8K ऑन चिप है। कितना है? 8K। 8K मतलब ये 1 हो जाएगा। 2 टू द पावर कितना, 13। Sir, 13 total. 13 मतलब 13 1 हो गया, 13 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0000 टू 1FFF। इसीलिए मैंने बोला 8052 में हमारा ऑन चिप रहता है, ऑन चिप रहता है 8K। ये आर्किटेक्चर का जो पिक्चर मैंने दिखाया अभी, जो मैंने तुम लोगों को समझाया था, 8052 का आर्किटेक्चर देखोगे तो सेम टू सेम है, सिर्फ 80 से रोम हो जाएगा तुम्हारा 8K, रोम हो जाएगा तुम्हारा 8K। इज इट क्लियर? सर इसमें फर्स्ट में जो है 8031 वो क्या है? 8031 इसको पुराना माने 8051 का थोड़ा लोअर वर्जन है। 8031 उसका कोई ऑन चिप रहता ही नहीं है, उसका सारा का सारा बाहर से लगाना पड़ता है। 8051 का कुछ ऑन चिप रहता है, 8052 का कुछ ऑन चिप रहता है। तो तीनों का कंपैरिजन दिखाया और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? Is it clear? Next is data memory. So data memory, PSEN is not connected. In a data memory, PSEN is not connected. In data memory, PSEN is not connected. Only read bar is connected as a ROM. That's why read bar is connected. If it is a RAM, then read bar and write bar both will be connected. Sir, how much? 8K into 8 means 8K मतलब 2 to the power कितना? Sir, 13. 2 to the power 12. Sorry, 2 to the power 13. 13. मतलब A0 से लेकर A12 तक A12 डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। देखो A0 से A7, A8 से A12 डायरेक्टली कनेक्टेड, A0 से लेकर A12 तक। रेस्ट ऑल आर कनेक्टेड विद NAND गेट। देखो NAND गेट कनेक्ट हुआ है A13, A14, A15 के साथ। And read bar is connected with OE, and you know write bar is not connected as a ROM. If it is a RAM, then write bar also is connected. But PSEN is not connected as is a data ROM.
If it is a program ROM, then PSEN also connected. It's clear to all of you? It's clear to all of you? Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। Any queries? सर तो इसमें दोनों अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका? इंटरफेसिंग का, क्या अलग अलग डायग्राम बोलो। प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी का। हाँ, प्रोग्राम मेमोरी डाटा मेमोरी तो अलग ही है। प्रोग्राम मेमोरी में तुम्हारा PSEN कनेक्टेड होगा, डेटा मेमोरी में PSEN कनेक्टेड नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। देखो एक साथ प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी अभी दिखा रहा है, तुम लोग को और क्लियर होगा। ये है डेटा मेमोरी, ये है प्रोग्राम मेमोरी। देखो दोनों ही 8K का है, एक साथ इंटरफेसिंग है। दोनों का ही A0 to A7 कनेक्टेड, A0 से A12 कनेक्टेड डायरेक्टली। देखो A0 to A7 ओवर हियर, A8 to A12 ओवर हियर, तो दोनों एक साथ कनेक्टेड है। इट्स क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. अभी क्या है देखो, इसके साथ डेटा रोम है, इसीलिए ये डेटा रोम के साथ देखो नैंड गेट कनेक्टेड, बट प्रोग्राम रोम के साथ देखो ये PSEN कनेक्टेड। प्रोग्राम रोम के साथ PSEN कनेक्टेड, और डेटा रोम के लिए तुम्हारा रीड बार भी कनेक्टेड। डेटा रैम होता था तो रीड बार एंड राइट बार बोथ विल बी कनेक्टेड। इट्स क्लियर? किसी का कोई क्वेरीज है तो बोलो। ये है माइक्रो कंट्रोलर, ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इट्स क्लियर? यस सर। This is a data RAM. As you know, I already mentioned, in a RAM, a read bar and write bar both are connected. Nothing else. अच्छा, इसका एड्रेस लोकेशन का रेंज क्या होगा? बोलो तो कोई, बोलो क्या होगा? एड्रेस रेंज का रैम ये क्या होगा? बोलो। सर A0 to A12 तो वैसा ही हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है फिर। और A13 तक है 000000000000। ये 13 14 15 देखो 13 क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली? डायरेक्टली है सर ये। ये 13 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, 8K है तो हाँ सर, 13 ऐसा क्यों है सर? ना, ये नैंड गेट में होगा। A13 में, अच्छा वो नैंड गेट में, नैंड गेट में मतलब उसमें नॉट भी लगा रहेगा? हाँ, नॉट लगा नहीं, डायरेक्टली लगा रहेगा वो। ये में नैंड में जैसे A15 लगा है। हाँ, तो ये 15 लगा है मतलब A15 1, A13 लगा है मतलब A13 1, A14 इज 0 0। so 1 0 1, next all are 1 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 1। तो ये F, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका F, ये हो गया 1 0 1 1 मतलब V, ये हो गया A 0 0 0, A 0 0 0 to AFFF BFFF। BFFF, A 0 0 0 to BFFF, A 0 0 0 to BFFF. Okay. So next,
नेक्स्ट इज आवर इंस्ट्रक्शन सेट। 8051 का कनेक्शन में लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। क्यों कनेक्शन में दिक्कत हो रहा है? सेम टू सेम ही कनेक्शन है, 85 का वो यही कनेक्शन था, अलग कुछ नहीं था। क्या जगह में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बोलो। जैसे जहां तक डायरेक्ट है वहां तक भी ठीक है सर, लेकिन और फिर उसके बाद बीच में जो कॉन्सेप्ट आया था डी फ्लिप फ्लॉप का, वो भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिगर दिखाइए ना सर। हाँ, फिर उसके बाद नैंड गेट भी ठीक है। दिक्कत क्या अच्छा, है? ये इस जगह में वाले में दिक्कत सर है ना, 8031 वाले में दिक्कत है सर। 31 में क्या दिक्कत है? ये क्या मतलब, ये कैसे कनेक्ट, ये क्या नहीं समझ में आ रहा है सर मेरे को। प्रोग्राम रॉम कितना है? 8K है, तो 8K मतलब A0 से लेकर A12 तक हो गया डायरेक्टली। यस सर। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी है, इसीलिए PSEN कनेक्टेड हो रहा है, नॉट एनी नैंड गेट, PSEN कनेक्टेड हो रहा है। और ये तो डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से A0 to A7 का काम करेगा, D0 to D7 काम करेगा, बस हो गया। ओके सर। इजी है, मगर तुम लोग देखो, ये हम पहले बार कराया नहीं, तुम लोग ये भी 8051 में नहीं भी कर सकते हो। जो मैंने सर कोई हाँ एड्रेस डिकोडर सर के हिसाब से दिखाया था, ऐसे भी दिखा सकते हो, सर मगर एक इसमें क्या है? क्वेश्चन हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे 13 एड्रेस लाइन बन रहा है हम लोग का, हाँ तो सर हम लोग उसमें क्या करते थे कि 30 एड्रेस लाइन को डायरेक्टली कनेक्ट करते थे। हाँ, तो सर यहाँ पे A0 to A7 को डीमल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे, देन आगे फर्दर 8 to 12 को डायरेक्टली कर रहे, मतलब सर थोड़ा ये डीमल्टीप्लेक्सर वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो तुम्हारा डायरेक्ट रहता नहीं है ना। A0 to A7 तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के पास रहता नहीं है डायरेक्टली। हम लोग बोल देता है A0 to A7, हम लोग बोलता है पीछे में ये डायग्राम है, पीछे में ये डायग्राम है, हम लोग बोलते नहीं है ये डायग्राम भी हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम तो बोला नहीं, सिर्फ इंटरफेसिंग का डायग्राम बोला है, तो इसीलिए हम लोग दिखाते हाँ हैं। हाँ वही वो सर। भी तुम इधर दिखा सकते हो, ऐसा कोई अच्छा बात मतलब नहीं है। यहाँ पे सर, डीमल्टीप्लेक्स यहाँ पे बात सर, यहाँ पे भी वही बात हो गया ना, क्योंकि हम लोग डी जो लेते हैं वही यहाँ पे ए आता है। जो इनडायरेक्टली लेते सर हैं, वही चीज हो रहा है जो हम लोग वहाँ दिखा नहीं रहे थे, यहाँ पे दिखा रहे हैं सर हम लोग। हाँ मतलब जो सर डी का वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे तो A7 0 आएगा, अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो A7 1 आएगा, क्योंकि सर राइट यहाँ पे क्यू राइट, बार में कुछ है ना, वही चीज हो गया ना सर। ठीक, सही बोले ना एकदम सर हम? एकदम एकदम सही बोले, एकदम सही बोला। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग पहले इसके बारे में हम कभी बोलते नहीं थे। इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये हम लोग सोचते ही थे जे ये हम लोगों का ऑलरेडी पीछे में करा हुआ है, यस सर, हम लोग यही कंसीडर करके बनाते थे। बनाता है। तुम लोग इधर में भी वो कंसिडर करके बना सकते हो, A0 से लेकर A12 तक, मगर हाँ ये हाँ देखो अभी क्लियर हो गया सर अभी। ये हम क्यों दिखाया तुम लोगों को? तुम लोगों को डीमल्टीप्लेक्स से A0 to A7 मिलता कैसे है? एक्चुअली तो माइक्रोप्रोसेसर के रहता है 80 to 87, A0 यस से सर, वो A7 मिलता TDM है रहता कैसे? है। ये देखो, ये डायग्राम बनाने में हमको एक दिन लग जाएगा, स्लाइड में है इसलिए हम तुमको दिखा पा रहे हैं। ये डायग्राम बनाने में हमको एक दिन लग जाएगा, ये पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एक क्लास हमारा पूरा छूट जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए हम दिखा रहे हैं। ऐसा तुम लोग डायरेक्ट एड्रेस डिकोडर बोल के A0 से A12 भी दिखा सकते हो। इट्स क्लियर टू यू? सर ये जो ऊपर में पिन है जो राइट बार और रीड बार से कनेक्ट है, तो वो P3 मतलब 0.6 से क्यों कनेक्टेड है? वेरी गुड सर, और वेरी इसी का 7 कनेक्शन सर मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। है सर, वेरी गुड सर। वो उसका पहले अंकिता को आंसर देते हैं, उसके बाद तुम्हारा देंगे। सर P3.6 में क्या है सर? P3.7 में क्या है सर? अच्छा सर, इधर से हाँ, ये तो पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो P0.0 से P0.7 किधर से आ रहा है? 80 to 87 इधर से आ रहा है। एड्रेस, ये जो एड्रेस 8 हाँ से 7 किधर से आ रहा है? P2.0 से लेकर P2.7 से आ रहा है। ये तो पिन का नाम है हाँ सर। सर, आप समझ गए सर। हाँ यस सर, नाउ क्लियर। वो मतलब फिक्स। वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते सर। अभी बोलो किसका क्या क्वेरी है?
हम इसको 100 बार बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा मत करना है सर काम पढ़ा है इसीलिए हम थोड़ा सर को एंगेज करके रखे, हम भी ऐसा नहीं। नहीं नहीं सर। देखो हर एक में देखो P0 to 0 क्यों, ये 80 to 87 का नाम ही है, तो P0 to 0 हाँ वहाँ फिक्स है, वो वही होना है। एंड ए P पोर्ट 2 में था A8 to A15, इसीलिए P2.0 से लेकर P2.7। PSEN तो डायरेक्ट था इसलिए P2.7, राइट बार एंड रीड बार P2.6 P3.6 P3.7 में था इसीलिए P3.6 P3.7 में है। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। देखो ये साइड वाला तुम नहीं भी करोगे, ये साइड वाला तुम नहीं भी करोगे तो भी तुमको नंबर मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो हम 85 में कराया वो भी करने से नंबर मिल जाएगा, मगर तुमको पूरा जानना चाहिए जो कैसे डीमल्टीप्लेक्स होता है। A0 to A7 में कैसे A0 to A7 मिलता है, कैसे D0 to D7 मिलता है, क्योंकि A0 to A7 डायरेक्टली मिलता नहीं है, D0 to D7 डायरेक्टली मिलता नहीं है, it are in a form of multiplexing. So how it is a demultiplex, that's I am describing. It's clear? यस सर। किसी का कोई क्वेरीज है तो बताओ, सर को एंगेज करके रखो, नहीं तो सर नेक्स्ट चैप्टर में चला जाएगा। बोलो विक्रम, कुछ बोलो, चुपचाप रहने से कैसे होगा। सर बहुत ऊपर से गया क्या? विक्रम बोलो। व्हाट अबाउट रिया? रिया को समझ में आया? रिया शायद नहीं है। रिया, वाओ, नाम थोड़ा लिख के रखते हैं। रिया इज नॉट अवेलेबल। प्रीति आज तुम हो क्या? यस सर। क्या समझ में आया, कुछ आया? सर आ गया समझ में। आ गया, हमको ही नहीं आया, तुमको आ गया, जब ठीक है। मंजिता, मंजिता समझ में आया?